بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں حاضر تھا، مسجد نبوی شریف میں حاضری کی سعادت ملی ہوئی تھی۔ نماز عصر پڑھ کر میں اندر جو قدیم مسجد نبوی ہے اسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک نوجوان ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے آیا اور ایسے ہی کتاب زمین پر پھینکا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا، دیکھا تو اس کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ۔ آپ حضرت بیٹھیں بس تھوڑی دیر کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ۔ میں نے وہ کتاب ہاتھ میں لے لی۔ جب وہ نوجوان نماز پڑھ چکا میں اس سے قریب ہوا، کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس سے کہا هل استطيع ان اتكلمك، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا ماذا تشتغل، آپ کرتے کیا ہو، آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کا ورک کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اتعلم فی الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں کا طالب علم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا این تسکن، آپ رہنے والے کہاں کے ہو؟ اس نے کہا اسکن من سوڈان، میں سوڈان کا رہنے والا ہوں، میرا تعلق سوڈان سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا فی ای صف تقرا، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فی الصف السابع، میں 7ویں کلاس کا طالب علم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا حل قرأت کتابا فی العقیدہ، کیا آپ نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے عقیدے کی کوئی کتاب اب تک نہیں پڑھی ہے۔ میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا معلوم کروں یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، اس یہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے۔ سوڈان افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کا رہنے والا۔ اس سے میں نے پوچھا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی بارگاہ میں لوگ فوج در فوج پہنچ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ لاؤ یہ سوال کروں، اگر یہ کہتا ہے کہ سنتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، اور اگر انکار کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چنانچہ میں نے اس سے جب یہ کہا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ رسول پاک کے روضے اطہر پر گنبد خضرا پر حاضری دے رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا فوراً کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انک میت و انہم میتون۔ اس کے بعد خود آگے وہ کہتا ہے فکلہم سوا سوا۔ اس کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے، علماء نے سمجھ لیا ہوگا، آپ زیادہ سمجھدار ہیں اس لیے نہیں سمجھ سکے۔ مولانا لوگوں کو آپ لوگ اولڈ مین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پرانی ہی بات بتاتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں نماز یوں پڑھو، روزہ یوں رکھو، کرتا یوں پہنو، لباس یوں پہنو، آپ اپنے آپ کو یوں رکھو، بال یوں رکھو، داڑھی یوں رکھو، یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میرے نوجوانوں بتاؤ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ عتبہ اور شیبہ کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے دوپتی کہاں چلے گئے؟ سب کے سب اسی زمین میں دفن ہو گئے۔ وفا کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ محبوب الہی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ میرے مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں لوگ سلام پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے جب اس سے پوچھا اس نے یہی جواب دیا جو میں نے آپ کو سنایا، مگر آپ شاید نہیں سمجھ سکے۔ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ اس لیے کہ میں نے عربی میں جواب
जवाब दिया। और ये अरबी जो मैंने पढ़ी, इस अरबी में पहला हिस्सा कुरान करीम की आयत करीमा है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी जो उसने जवाब के तौर पर सुनाया था। वो कहता क्या है मेरे सवाल के जवाब में? क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी, व इन्नहुम मय्यितून, और दूसरे लोगों पर भी मौत तारी होगी। अब आगे वो अपनी तरफ से कहता है कि जब सब पर मौत तारी होगी, सब मौत के मुंह में चले जाएंगे, सबको मौत आनी है, फकुल्लुहुम सवा सवा, सब के सब बराबर हैं। उसने ये नजरिया पेश किया, सब के सब बराबर हैं, यानी कोई नहीं सुनता है। जैसे आम लोग नहीं सुनते हैं, वही हाल रसूल पाक का है। ये गुंबदे खजरा के साए में बैठकर रोजाना तालीम लेने वाला तालिबे इल्म कह रहा है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट कह रहा है। उसने जब ये कहा तो मेरे दिल को गैरत आई। मैं गुंबदे खजरा की छांव में बैठा हुआ था, मैंने सोचा इसको कुछ न कुछ रज़वी इंजेक्शन देने की जरूरत है, और जो इसके अंदर जरासीम है, उन जरासीम को, और जो कोरोना है बदअकीदगी का, उसे निकालने के लिए कोई ना कोई दवा इसको देनी जरूरी है। चुनांचे मैंने उससे कहा, हल समेत इसम शेख इब्न अल क़य्यिम, क्या आपने शेख इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? इब्न क़य्यिम को आप नहीं जानते होंगे, ये उलमाए अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, जमाते गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि आदमी दूसरों की मानने में तरद्दुद में रहता है, मगर अपनों की तो मानता ही मानता है। इसलिए मैंने उस गैर मुक़ल्लिद आलिम का जिक्र किया जिसको सारे उलमाए अहले हदीस अपना पेशवा मानते हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने कहा क्या आपने इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? उसने कहा हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा उनकी एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है, क्या आपने इस किताब का मुताला किया है? उसने कहा ला, नहीं मैंने इस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने उससे कहा कि इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर ये लिखा है, क़द सह्हा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। उलमाए हदीस के ये पेशवा अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिख रहे हैं कि सही हदीसों से ये साबित है कि जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब मैंने उसकी ये इबारत पेश की और किताब रूह का हवाला दे करके मैंने उससे पूछा क्या इब्न क़य्यिम ने जो ये लिखा है आप इसको मानते हो? अब जाहिर सी बात है, बात आ गई अपने मौलाना की, तो कैसे इनकार कर सकते हैं? यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पीर के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके उस्ताद के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके शेख के बारे में कोई कुछ कह दे, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि कानून के शिकंजे में रहा जाता है, तो हम कानून को गुहार लगाते हैं, ऐ कानून तू आ और इंसाफ कर कि जब हमने किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन नहीं की तो कायनात के सबसे अजीम पेशवा की तौहीन क्यों की जाती है? इसलिए अगर आज नहीं तो कल मैदान महशर में देखा जाएगा, जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा और अहले ईमान जन्नत की नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मैंने
अर्रूह किताब का हवाला दे करके जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मानता हूँ। जब उसने कहा मैं मानता हूँ तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं। मैंने इब्ने कय्यिम के हवाले से हदीस पेश की जिसमें लिखा हुआ है कि नबी जिंदा है और जो जिंदा है वो बिला शुबह सुनता है। तो अब बताइए आपने जो आयत पेश की जिससे आपने साबित करना चाहा कि नबी सुनते नहीं हैं वो सही है, या जो हदीस मैंने इब्ने कय्यिम के हवाले से पेश की जिससे साबित होता है कि नबी जिंदा हैं सुनते हैं ये सही है? दोनों में सही क्या है? अब वो बेचारा इम्तिहान में पड़ गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा। जब उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने मुझसे कहा बय्यिन माना हादिल आया व हादिल हदीस, या शेख बय्यिन लना माना हादिल आया व हादिल हदीस। कहता शेख मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि दोनों में सही क्या है, मुझे हदीस का भी माना बताइए, कुरान करीम की आयत का भी मतलब समझाइए। मैंने उसको थोड़ी देर तक अपने अंदाज में परेशान किया ताकि ये समझ जाए कि सिक्के के एक रुख को देख करके हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक कि सिक्के के दोनों रुख का मुताला न किया जाए। आजकल कुछ लोग सिक्के का एक रुख दिखा करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि उसने हर हकीकत से निकाब को उलट करके और कौम को गुमराहों से मतनब्बे करते हुए फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैंने उसके सामने जब तफसील रखी उसने कहा शुक्रन लगाया शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कुरान और आयत हदीस का मतलब समझा दिया। और उसने तस्लीम किया कि बेशक नबी जिंदा हैं और कब्रों में अपने अपने आराम फरमा अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है और पुकारने वालों की पुकार को वो सुनते हैं। उसने इस बात को तस्लीम किया। मैंने सिक्के का दोनों रुख जब उसके सामने रखा हुआ हैरत में पड़ गया। मैं यस करना चाहता हूं कि आज भी एक जमात जुब्बा लिबास में कौम को गुमराह करने की नापाक कोशिश में लगी हुई है और कलमा पढ़ने के बावजूद वो दर हकीकत कुरान का भी इनकार कर रही है और हदीस का भी इनकार करती है। इसी हिंदुस्तान में ये जमात भी पाई जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा में किसी की शान में गुस्ताखी के कलमा मत बोलना। रसूल पाक का इरशाद है मेरे सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी मत करना, उनकी शान ऐसी बुलंद बाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। उनकी शान यह है कि अगर तुम में से कोई बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2 किलो 4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा बहुत पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये रसूल पाक के सहाबा की शान है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इस वक्त हिंदुस्तान भर में तौहीन सहाबा की तहरीक चला रहा है और जगह जगह रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करके अपनी बदबख्ती का सबूत दे रहा है। बताइए रसूल पाक तो ये फरमाएं कि मेरे सहाबा को तुम बुरा मत कहना, मगर जमात एक ऐसी पाई जाती है कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद रसूल पाक के सहाबा की तौहीन कर रही है। जगह जगह अपनी मस्जिदों में अपने अवाम में अपने लोगों में सहाबा की अजमत पर कीचड़ उछालने की नापाक कोशिश की जा रही है। इसी वजह से 2 महीने के अंदर मुझे 2 मरतबा ऐसे नाहंजारों से मुनाजरा करने के लिए मजबूरन जाना पड़ा। पहली बार मैं पिंगलौर गया और अभी चंद रोज पहले मुझे झांसी जाना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह दुनिया ने ये देख
देख लिया किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्फबार, आगा से कह दो खैर मनाए न शर करें। क़यामत तक जब तक मुस्तफा के सच्चे वफादार रहेंगे, इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को फैलाने वाले जब तक रहेंगे, किसी सहाबी की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो कोशिश की जाएगी कि कानून की जबान से उसकी उंगली को काटने की कोशिश की जाए। कोई जबान अगर खुलेगी तो कानून की जबान के जरिए उसको काटने का हुनर भी जाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो सहाबा पर तबर्रा करते हुए फख्र महसूस करती है। मैं और मजीद तो कुछ न कहूँगा, लेकिन ये मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से कुछ सालों पहले तक सऊदिया अरबिया ने वहाबियत को फैलाने के लिए अपनी दौलत का दहाना खोला, आज भी कुछ मुल्क जो गुस्ताखाने सहाबा में शुमार किए जाते हैं अपनी दौलत का मुंह खोले हुए हैं, और हिंदुस्तान के बहुत सारे टट्टू उसका शिकार होकर मस्जिदों मेहराब के जरिया उनके नापाक अज़ाइम की तकमील में लगे हुए हैं और राफिजियत को फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अपने उन शुअरा पर, सबकी बात नहीं करता, और अपने उन नौजवानों पर कि अगर इनके सामने सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया जाए तो ये नहीं पंच मचलते हैं, इनके सामने अगर उमर फारूक आज़म का जिक्र किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, इनके सामने अगर उस्मान गनी की सखावत का जिक्र न किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं। और अगर शायर ने अली 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 कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि दरबारे अली में पहुंच गए और जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया, और उसके बाद में फिर वो शायर उसी एक लफ्ज को 50 मरतबा दोहराता है। जाहिर सी बात है जब मिजाज स्टेज से ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बनेगी। इसलिए इस पहलू से भी हमें सोचने की